Give access, make a host to Mr. Prasad. Okay, I think we can start now. I think other participants are joining now. And sorry for the delay for the 5 minutes. Welcome, first of all of you, and welcome to this webinar on planet versus plastic. We have a guest speaker today with us, Mr. Prasad Bhosle, who is a district technical expert for the Kolhapur district, and he's also master trainer for sanitation workers in Maharashtra under RCUES Mumbai. He's working with the Swachh Maharashtra Mission Directorate Mumbai under the Urban Development Department Maharashtra. He has experience with the demonstrated history of working with the government administration, skilled in solid waste management, event planning, documentation, volunteer management, and public relations. Now he's working with the Kolhapur district and for the Swachh under the Swachh mission, Swachh Bharat mission, and Maji Vasundhara Abhiyan. So I hope all of you are interested to listen about his experience and the challenges in front of us for the single-use plastic and the challenges and opportunities to deal with the single-use plastics. As we know, Earth Day have recently launched its theme for planet versus plastic, and it is the theme which is related and focused on how we can reduce the plastics from our daily use, and there are many challenges in front of us to tackle and give the alternative to the single-use plastics. So I hope we all of us are interested to listen to Mr. Prasad Bhosle to learn his experiences. So Prasad, I think you can see us and hear us now. Is there any technical help you need? Prasad, can you hear us? Yes, I can hear you. Yes, so now we can start. Over to you. You can start with a little bit of your experiences, and then we can start our with your presentation. Over to you, Prasad sir. Thank you. Okay, thank you. Good afternoon, all. My name is Prasad Bosle, and I'm truly honored to be here today to discuss a pressing issue that affects us all, that is plastic waste management. I have been working in solid waste management sector since last 4 years in government sector, uh, and I'm trying to find the solutions and challenges that uh, that has been जो इसके सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में जो भी प्रॉब्लम्स है वो हम डिस्कस करने के लिए यहाँ पर अभी ज्वाइन कर रहे हैं सभी विनायक इज देयर एनी इशू विद योर साइड No, from my side there is no issue. I think your video is not visible right now. If No, you can, because I tried to log in with PC. uh, I wanted to share my screen and presentation. yes. ठीक है अभी मैं So you मोबाइल पे can ज्वाइन कर use रहा हूँ. that link, the special link what I have shared with you. You can Yes, I have been using the same link, but it is not getting connected. okay, you can try again. We can wait for 2 minutes. We can try with your laptop because the sharing your presentation would be great to see other It would be much participants. easier to understand what I'm trying Yeah, to deliver. yeah, exactly. So we can wait for 2 minutes. Just try again through the laptop, Yes, I'm then we right. can start. Yes, I'm right. Kindly wait, please. Yes, yes. So, meanwhile, our guest will be joining through their PC. I would like to introduce about our organization as Earth Day have
about the Earth Day. Many of us have already known Earth Day. We celebrate on 22nd April, and we celebrate it with the very activities, many activities like celebration of Earth Day as an plantation, as a cleanup. So there are multiple events that we celebrate on Earth Day, and it started back in 1970 in USA, and there you can imagine that in that period where the no internet was there and people are mobilized for demanding the law and enforcement for the environmental protection, and that moment the first environment law has enforced by USA, and now the Earth Day has become a global movement, and now Earth Day is a presence over more than 192 countries with a 1.5 billion partners. So Earth Day in India is a aligned partner with the Earth Day. It is a registered trust in India, which is inspired by the global NGO EarthDay.org. And now today, working on spreading awareness on the plastic, mobilizing people to environmental conservation. I think Prasad, you have joined, and now you have access to the screen. Yeah, Prasad, you are muted. Still you are muted. Your voice is not coming. You Okay. can unmute. Yeah. Yes, now we can hear you and we can see you. Welcome again. And Sorry for we the can start. disturbance. Yeah, we can start now. Over to you, Prasad. Thank you very much. So बेसिकली मैं कहना चाहता था कि मैं गवर्नमेंट सेक्टर में पिछले 4 साल से काम कर रहा हूँ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में। तो इज इट विजिबल? Yes, it is visible. You can make it full screen so that everyone can see. ओके, सो ड्राई वेस्ट मैनेजमेंट में सॉलिड वेस्ट सेक्टर में काम करते वक्त जब भी मैंने ऑन ग्राउंड कंडीशंस देखी थी, तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट इन आवर सेक्टर, दैट इज ड्राई वेस्ट एंड वेट वेस्ट। वेट वेस्ट इज नॉट दैट मच ऑफ कंसर्न बिकॉज हम वो सेग्रीगेट कर सकते हैं और उसके बाद में वो हम उसका बायोडिग्रेडेबल होने की वजह से वो हम कंपोस्ट भी कर सकते हैं। लेकिन जो ज्यादातर जो इश्यू रहता है वो ड्राई वेस्ट का रहता है। अभी ये बैकग्राउंड है कि व्हाट आर द मेन इश्यूज एंड कंसर्न्स अबाउट पब्लिक हेल्थ एंड क्लीनलीनेस, बिकॉज जब प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है तो हम देख सकते हैं कि अनसेफ डिस्पोजल जो होता है ड्राई वेस्ट का, तो जब हम वो लैंडफिल में डंप करते हैं, it get back to us from various means of source. So और हम जैसे अभी हमने जो केस स्टडीज किए थे जिसमें 600 मरीन स्पीसीज अफेक्ट हो रहे हैं प्लास्टिक के वजह से। अभी गवर्नमेंट में हम जो स्वच्छ सर्वेक्षण रन करते हैं उसमें बेसिकली अपने सेंट्रल ने गार्बेज फ्री सिटी करके एक सर्टिफिकेशन ऐड किया है, जिसमें हम पूरी तरह से प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट या फिर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट उसमें हम जो भी यूएलबी उसमें अच्छा काम करते हैं उसको हम 1 स्टार 3 स्टार 5 स्टार अकॉर्डिंग टू देयर एक्चुअल कंडीशंस हम उनको वो स्टार प्रोवाइड करते हैं। सो we can start with basics, that is what are the types of solid waste. There are two types of solid waste, which is basically biodegradable and non biodegradable. We are going to discuss basically on right now dry waste, which cannot be decomposed by biological processes, and they are further divided into two types, that is recyclable and non-recyclable. Recyclable waste is more economic towards us because they provide us high economic values and can be recovered. Also, non-recyclable waste, right now they are banned thermocol and tetra packs also,
but we can see there are till now we have not much of uses of thermocols. कंपोनेंट्स सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, अगर हमें ड्राई वेस्ट मैनेजमेंट को की तरफ जाना होगा तो पहले हमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में हमें पता करना होगा. सो देयर आर 4 मेजर स्टेप्स इन विच वी कैन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वी कैन हम जो है वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसेस कर सकते हैं. सो सेग्रीगेशन, सबको लगता है कि कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन इज द फर्स्ट थिंग that we should start with, but segregation is the most basic and most important part of management, because if we do not get segregated waste, then we are unable to collect it and transport it to the further processing. secondary segregation जो होता है हमारे वेट ड्राई वेस्ट का, वहां पर अभी मैं इनफॉर्मल वेस्ट पिकर्स या सैनिटेशन वर्कर्स के लिए भी काम करता हूँ, उनके हेल्थ के इश्यू रिगार्डिंग. तो अगर हम किसी भी डेपो पर जाएंगे या कंपोस्ट साइट पर हम विजिट करेंगे तो हम देख सकते हैं कि वहां पर इम्प्रॉपर तरीके से सेग्रीगेशन ना होने की वजह से जो उनके हेल्थ इश्यूज होते हैं. तो अभी हमें उसको ओवरकम करने के लिए पहले सेग्रीगेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, हमें वो करना चाहिए, और उसके बाद ही हम वो आगे के जो स्टेप्स है वहां तक जा सकते हैं. There is no any point in collecting and transporting unsegregated waste. It will also require lots of manpower and lots of economic also. And challenges in dry waste. अभी ये जो है challenges वो हम जितना भी हम अभी जो ग्राउंड लेवल पर बात करते हैं या फिर हम जो डिस्कस करते हैं, ये इशू रहते हैं कि हम खाली हम क्या उनको टेक्निकली प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर हम किस तरीके से फंडिंग पैटर्न हम देकर या फिर मशीनरीज देकर हम ड्राई वेस्ट को कैसे ओवरकम कर सकते हैं. लेकिन जो बेसिक रहता है वो है कि लो अवेयरनेस ऑन सेग्रीगेशन एट सोर्स. अगर सेग्रीगेशन एट सोर्स ही नहीं हो रहा तो हम ड्राई वेस्ट मैनेजमेंट का जो बेस है वो हम उस तरह से अचीव नहीं कर पाएंगे. सो वेस्ट मैनेजमेंट एसेट्स, अब मैंने जो ग्राउंड लेवल पर काम करते वक्त जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो था कि हम कलेक्शन कर सकते हैं, अच्छी तरह से कलेक्शन करते हैं ड्राई वेस्ट का, वेट वेस्ट का, ड्राई वेस्ट का, लेकिन उसके बाद क्या, वी डू नॉट हैव दैट फॉरवर्डेड लिंकेजेस. उसकी वजह से हम जो भी कलेक्शन करते हैं वो ड्राई वेस्ट हो या वेट वेस्ट हो, हम उसको डिस्पोज नहीं कर पाते, प्रॉपर डिस्पोज नहीं कर पाते. तो वो इट गेट डम्प्ड इनटू डंप साइट और लैंडफिल in proper way. So that is not a good practice. Also, non-availability of low-cost technologies, which means when we go to DMart. So आप यही एक एग्जांपल ले लो, अगर हम DMart में जाते हैं तो वहां पर हम जब परचेस करते हैं कुछ भी, तो सामान परचेस करने के बाद हमें वहां पर जो क्लॉथ बैग वो प्रोवाइड करते हैं उसके लिए वी हैव टू पे सम अमाउंट ऑफ मनी, 10 रुपीज, 15 रुपीज एटसेट्रा. सो नेक्स्ट टाइम हम जब भी जाते हैं डीमार्ट में तो हम वी कैरी आवर ओन बैग्स. व्हाई? बिकॉज वी डोंट वांट टू स्पेंड दैट मच मनी अनदर टाइम. वैसे ही अगर प्लास्टिक बैग्स, कैरी बैग जो होते हैं प्लास्टिक के, वो हमें इजीली अवेलेबल हो जाते हैं कहीं पर भी, सब्जी वाला हो, कोई भी हो, अगर राह चलते वक्त हम कुछ कैरी नहीं करते तो हमें वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है प्लास्टिक कैरी बैग. सो उसकी वजह से अवेयरनेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो क्यों यूज ना करें हम, और हम हर वक्त कैरी बैग यूज ना करके क्लॉथ बैग साथ में रखना चाहिए. अगर हम आप ही देख लो कि अगर हमने प्लास्टिक बैग के लिए 10 रुपए 15 रुपए देना चालू कर दिया तो हम नहीं लेके जा सकते उसके साथ, हम अगली बार हम क्लॉथ बैग ही लेके जाएंगे साथ में. वैसे ही लैक ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ कम्युनिटी इन प्लानिंग, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट या फिर कम्युनिटी आउटरीच, ये जो पॉइंट है, वी हैव टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ सिटीजन्स
that would be performed in ULB level and ward level. अगर हम डोर टू डोर जाके कैंपेनिंग करते हैं तो हमें एग्जैक्ट इश्यूज भी समझ में आएंगे कि व्हाई दे आर यूजिंग दैट मच ऑफ प्लास्टिक वेस्ट, और हम उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं या फिर वो कम कैसे कर सकते हैं। और अभी स्कूल स्टूडेंट्स या यूथ आईसी एक्टिविटीज में जो पार्टिसिपेट करते हैं वो उनके हम जब स्कूल में जाते हैं तो दैट वुड बी द बेटर आईसी एक्टिविटी टू कंडक्ट द अवेयरनेस प्रोग्राम, बिकॉज जितना भी स्कूल के बच्चे समझ पाते हैं वो आगे जाके घर में बोल सकते हैं कि हमने आज ये तरीका अपने अपनाना चाहते हैं हम लोग, और वो घर में वो अपने फैमिली का भी माइंड चेंज कर सकते हैं उसकी वजह से। ये सब अभी मैंने जो आपको बताया कि हमने जब ग्राउंड में जाके देखा कि सैनिटेशन वर्कर्स को क्या तकलीफ होती है, ड्राई वेस्ट कलेक्शन या हो या वेट वेस्ट कलेक्शन हो। ड्राई वेस्ट कलेक्शन के बारे में उनसे हमने दिक्कत क्या थी ये उनसे डिस्कस करके लिया। उसके बाद हमने देखा कि हम स्कूल में जाके उन लड़कों स्कूल में जाके हम ऐसे एक्टिविटीज कर रहे थे कि जिसकी वजह से उनको बताया कि आप प्लास्टिक वेस्ट ना यूज करें। डोर टू डोर कैंपेनिंग हमने किया। डोर टू डोर कैंपेनिंग में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि लोग हमसे पूछते हैं कि अल्टरनेटिव्स, basic main issue is the alternative. We do not have that much alternatives or low cost alternatives for plastic waste. Yeah, plastic carry bags, we can use plastic carry bags on very free of cost, you can see free of cost. So हमने एक प्लान किया कि हम एक प्रॉपर चैनल थ्रू के जाए जिसकी वजह से उनको कैपेसिटी बिल्डिंग करे लोगों का। हमने डोर टू डोर कैंपेनिंग की। स्कूल में जाके हमने प्रॉपर तरीके से उनको अपना पॉइंट रखा। ये कैपेसिटी बिल्डिंग या फिर बिहेवियरल चेंज, इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ऑल काइंड ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट। बिहेवियरल चेंज हम नहीं कह सकते कि वो एक दिन में हमने जाके अवेयरनेस एक्टिविटी की या फिर ऐसी एक्टिविटी की, स्ट्रीट प्लेस किया तो वो एक दिन में उनमें चेंज आ जाएगा। इट टेक much time. So we have to be patient, and ultimate goal is our goal is to ban single use plastic totally. So हमने प्लास्टिक पोस्टर प्रेजेंटेशन हो या फिर ऐसी एक्टिविटी डोर डोर किया, क्लॉथ बैग डिस्ट्रीब्यूशन हमने की है। लोगों को अवेयरनेस होने के लिए क्लॉथ बैग डिस्ट्रीब्यूशन करके उनको एक पहले हमने फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया, बाद में हमने एक वेंडिंग मशीन लगाकर उसमें से यू कैन परचेस इट अप टू 5 रुपीज, हमने उसका एक मिनिमम कॉस्ट रख के दे दिया। सो उसका भी रिजल्ट अच्छा था। वार्ड लेवल में जाके सेग्रीगेशन, जो मैंने पहले बोला कि प्लास्टिक सेग्रीगेट होना बहुत जरूरी है, तो सेग्रीगेशन कौन करते हैं? तो हमारे घर के जो लेडीज है वो सेग्रीगेशन करते हैं। तो हमने उनकी जाके सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू या फिर जो नुक्कड़ प्ले करते हैं, हम स्टेट प्ले करते हैं, उनके थ्रू जाकर हमने उनसे बातचीत की, उनको अवेयर किया कि हम कैसे प्लास्टिक सेग्रीगेट कर सकते हैं। एंड देन वी स्टार्टेड विजिटिंग शॉप्स आल्सो। हमने शॉप असेसमेंट किया शॉप का, देखा कि कहाँ पर प्लास्टिक उनका क्या रिएक्शन है कि अगर हम प्लास्टिक बैन कर दें, पूरी तरह से प्लास्टिक बैन कर दें और उनको अल्टरनेटिव यूज करने के लिए बोल दें, तो उनके कंज्यूमर पर क्या उसका इफेक्ट होता है या फिर उनके उनका ओवरऑल जो इनकम है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो हमने वो भी सब असेसमेंट करने के बाद हमने उनको अल्टरनेटिव्स दिए, अच्छी तरह से उनको वो समझाया कि प्लास्टिक वेस्ट ना यूज करे। उसके बाद जाके हमने इतना सारा कैपेसिटी बिल्डिंग पूरा साल भर करने के बाद हमने फिर फाइन इन्फोर्समेंट चालू कर दिया। एक कंसेप्ट है सबके दिमाग में कि प्लास्टिक बैन जो है वो फाइन करने से कम हो जाता है या फिर फाइन होने से वो बैन हो जाएगा। सो दैट इज द रॉन्ग कंसेप्ट, बिकॉज we cannot just go and fine anyone to do not use plastic waste or plastic bags, because 5,000 कोई अपने ऐसे ही नहीं दे सकता किसी को कि फाइन आप मुझे करो। तो पहले कैपेसिटी बिल्डिंग करना पड़ेगा, उसके बाद आप जाके एक
प्रोसेस फुल उसको एक टाइम देने के बाद वो चीज आपको लास्ट में करना पड़ेगा, अगर आपको कोई कुछ आउटकम नहीं आ रहा हो तो फिर। तो हमने जब प्लास्टिक बैन किया, तो हमने जब सील करना चालू कर दिया दुकान, तो थोड़ा बहुत उसमें सुधार आ गया। वो था आउटकम। अभी देख सकते हैं कि ड्राई वेस्ट हम रिकवर करने के लिए हमें 3 टाइप के ड्राई वेस्ट होते हैं हमारे यहाँ: रिसाइक्लेबल, नॉन रिसाइक्लेबल, हैजर्डस। सो रिसाइक्लेबल में आता है पेपर, प्लास्टिक, मेटल, कैन्स एटसेट्रा। नॉन रिसाइक्लेबल में बॉटल कैप, थर्मोकोल, वुड, टेक्सटाइल, एनएलपी। हैजर्डस में सैनिटरी नैपकिंस, बैटरीज, या फिर डोमेस्टिक हैजर्डस, वी कैन से डोमेस्टिक हैजर्डस वेस्ट। उसमें से रिसाइकलर्स रिसाइकल करने के बाद हम उसको या हमारे सेंटर या हो इसमें हो रोड कंस्ट्रक्शन में यूज कर सकते हैं, आरडीएफ फ्यूल करके यूज कर सकते हैं। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट में जो हमें अभी आप देख सकते हैं कि जो भी हमने सोर्सेस किए थे एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट की तरफ से, तो प्लास्टिक जनरेशन वी कैन सी हाउ मच metric tons it getting generated every year, and it is the data we have from 18-19. So अभी तो उसमें बहुत ज्यादा बढ़ावत हो गई होगी, हम देख सकते हैं। और महाराष्ट्र इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट स्टेट इन प्रोड्यूसिंग जनरेटिंग प्लास्टिक वेस्ट, and it is very harmful to animals and जो हमारे समुद्र सागर किनारा है उनको भी वो अफेक्ट कर सकते हैं। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए जो लोकल लेवल के लिए अगर हम जाकर बात करें, तो व्हाट्स आर द मोस्ट सुटेबल लोकेशन टू अवेयर पीपल, एंड उनको बताना पड़ेगा कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट क्यों इम्पोर्टेंट है। देयर आर 4 प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए 4 आवर्स है। अभी तक हम 3 आवर्स कंसिडर कर रहे थे कि उसमें एक ऐड हो चुका है रिसाइकल करके, रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। सो these are some alternatives to reduce use of plastic waste. हम मैरिजेस हॉल्स होते हैं, या फिर कोई भी फंक्शन होता है हमारे घर में, तो वी इजीली यूज सिंगल यूज प्लास्टिक बॉटल्स एंड प्लेट्स एटसेट्रा। बट अगर हम इम्पोज करें, या फिर जो मैरिजेस हॉल्स है या फिर जो भी रिलीजियस प्लेस है, उनको अगर हम ये अल्टरनेटिव दे दें कि आप पारंपरिक जो अपना पुराना जो है वो अपन हम यूज कर सकते हैं, तो फिर प्लास्टिक यूज वेस्ट कम होगा इसमें। इको ब्रिक्स, ये कंसेप्ट तो आपको भी पता होगा, अर्थ डे तो इसमें बहुत काम करता है। अगर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हम देखें, तो उसमें कर्नाटका was the first state to ban single-use plastic in 2016. Maharashtra has already 2 times banned plastic waste carry bags, and there is one amendment just made in August 2030, in which EPR is included, extended producer's responsibility, in which it is based on polluter pays principle. वो भी एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जिसकी वजह से हम एक फॉरवर्डेड लिंकेज जो हम बोल रहे थे कि जिसकी वजह से प्लास्टिक जनरेशन, वेस्ट जनरेशन ज्यादा होता है, तो वो कम हो सकता है। बेसिकली प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल कहता है कि जो यूएलबीज आर एक्सपेक्टेड टू अबाइड द प्लास्टिक वेस्ट रूल्स। प्लास्टिक बैन में जो प्राइमरी रोल करता है वो यूएलबी है, जो भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होता है वो उसमें प्राइमरी रोल करता है, जिसमें वो जाके फाइन इम्पोज करे या फिर अवेयरनेस एक्टिविटीज करे। और प्लास्टिक वेस्ट रूल जो अमेंडमेंट हुई थी 2022 में, उसमें जो ये सारी चीजें उसमें उन्होंने वापस से बैन कर दिए थे, ईयरबड्स, प्लास्टिक स्टिक्स,
प्लास्टिक स्टिक्स फॉर बलून्स एक्सेट्रा, कप्स, ग्लासेस, जो कटलरी के जो भी सामान थे वो उन्होंने पूरी तरह से बैन कर दिए। और अभी जो प्लास्टिक का थिकनेस है बैन, वो 120 माइक्रॉन्स का है। उन्होंने स्टेप बाय स्टेप वो मैं आगे एक और प्रेजेंटेशन में दिखाऊंगा कि कैसे स्टेप बाय स्टेप हमने हर हर एक थिकनेस को कम करते वक्त अचीव कर दिया है अभी वो। And CPCB and the state MPCB are the implementing agency. We visit shops along with the MPCB officials to monitor the ban or the use of plastic. And if there is any violation or any kind of use, then we impose penalties on them. And at some instant, we also seal the shop to just aware the other shop owners कि आप अगर यूज करेंगे प्लास्टिक तो हम अभी इनको भी सील कर रहे हैं, इनका आपका भी शॉप हम सील कर सकते हैं। तो ये एक इफेक्टिव हो गया कि उसकी वजह से जो हमने बदलाव देखे कि बहुत सारा प्लास्टिक यूज होना बंद हो चुका। और जो उनके पास जो हमने जो सील करके लिया प्लास्टिक, सो जो फॉरवर्डेड लिंकेजेस में हमने एक गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड थोड़ी इंडस्ट्रीज है, उनको हमने वो ट्रांसपोर्ट कर दिया। जैसे मैंने बताया कि वार्ड वाइज एक्टिविटीज हम क्या कर सकते हैं प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट में। तो डोर टू डोर कलेक्शन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट अलॉन्ग विद अदर वेस्ट, हम सेग्रीगेटेड मैनर में प्लास्टिक वेस्ट कलेक्ट कर सकते हैं। प्लास्टिक देयर आर 7 कैटेगरीज ऑफ प्लास्टिक, so we have to segregate in each type of plastic waste, and segregation at source करने के बाद we should make a proper plan how it will go to MRF center, or you can see here in next slide. So arrangements are there. अगर हम एक सॉलिड वेस्ट एक्शन प्लान कर सकते हैं, जो कि अभी यूएलबी लेवल पर हमने चालू कर दिया है सॉलिड वेस्ट एक्शन प्लान करना, उसमें जो भी ड्राई वेस्ट मैनेजमेंट हो या वेट वेस्ट मैनेजमेंट हो, उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा या फिर जो कैपेसिटी बिल्डिंग करना पड़ेगा, उसके लिए हमने एक प्रॉपर एक्शन प्लान तैयार करके हर यूएलबी को कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में हमने वो प्रोवाइड कर दिया है। और उसकी वो अब अप्रूवल के लिए स्टेट के बाद सेंटर को जाएगा। तो वो एक्शन प्लान में ये सब इंक्लूड है कि हम कैसे प्लास्टिक वेस्ट हो या ड्राई वेस्ट हो, उसको हम कैसे तरह से टैकल करें। और यूएलबीज एज यूएलबी छोटी होती है तो उनके पास उतना इनकम सोर्स नहीं होता या फंडिंग सोर्स नहीं होता। सो गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग फंडिंग इन परसेंटेज। जिस क्लास की यूएलबी होगी उस क्लास के हिसाब से वो परसेंटेज है, 75, 25 एक्सेट्रा। सो यूएलबी को कम से कम पैसा उसमें फंडिंग करना होगा, तो दे कैन इजीली मैनेज दैट एक्शन प्लान। एंड उसके बाद हमें कलेक्शन रूट करना होगा। उसमें प्लास्टिक वेस्ट अगर कलेक्ट करना है तो हमें कलेक्शन रूट हमें फिक्स करना पड़ेगा कि हमें वार्ड वाइज हो या सोर्स सेग्रीगेशन वाइज हो, वार्ड वाइज और यूएलबी वाइज हमें कलेक्शन पॉइंट करने के बाद वो पूरा एक जगह पर लाने के लिए हमारे सेंटर जो होता है मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी, वहां पर हम वो ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल प्रॉपर चाहिए और मैन पावर भी लगेगी। तो वो सब हमने उस सॉलिड वेस्ट एक्शन प्लान में इंक्लूड करके लिया है कि हमें व्हीकल, मैन पावर सब कैलकुलेट करके उसमें एक्शन प्लान तैयार किया है। तो मशीनरीज से लेके सब कुछ सही जाता है, हम सेग्रीगेशन करके लेते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन अगर उसके लिए मशीनरीज नहीं हो तो हम वो प्लास्टिक जो कलेक्ट करते हैं वो उसका कोई यूज नहीं होता। सो उसके लिए फाइनेंशियल एक्शन प्लान भी हमने तैयार करके लिया है कि एज पर यूएलबी's रिक्वायरमेंट व्हाट काइंड ऑफ मशीनरीज दे कैन easily purchase, and we have provided them some financial support also.
फॉरवर्डेड लिंकेजेस, रिसाइकल, जो इसमें रिसाइकल प्रोडक्ट्स होते हैं या फिर ग्रैन्यूल्स होते हैं। आप अगर ये स्लाइड आपको थोड़ी डिस्टर्ब कर सकते हैं, आप कहेंगे कि इतना कैसे कोई कैसे इतना पे कर सकता है, लेकिन एक्चुअली यू कैन गेट इनफ इनकम फ्रॉम दिस आइटम्स पर केजी। 24 केजी पेट बॉटल जो होते हैं, अगर हम उसका जो ऊपर का जो कवर होता है वो जो एक मिनट। सॉरी। सो पेट बॉटल जो होते हैं, अगर हम उसका एनवेलप निकाल कर हम वो दे, अगर क्लियर हो वो पेट बॉटल, तो उसको हम 24 पर केजी इतना हम उससे इनकम ले सकते हैं। या फिर मेटल आइटम जो भी हमने यहाँ पर दिखा है, 80 रुपीज पर केजी, प्लास्टिक कवर्स 40 केजी, मिल्क कवर्स एक्सेट्रा, हम इजीली ये डिस्पोज कर सकते हैं, या फिर हम ऐसे ही वो फेंक देते हैं यूज करने के बाद। अगर हम ये ऐसे इन प्रॉपर तरीके से उसको डिस्पोज करने की वजह से, अगर हम एक कलेक्ट करके उसको अगर हम रिसाइकलिंग के लिए या फिर अपने जो यहाँ पर कबाड़ी वाले जो होते हैं उनको अगर हम दे देते, तो इसमें इनकम सोर्स भी बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। जैसे कि मैंने बताया कि सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग एमआरएफ सेंटर्स एंड एस्टेब्लिशिंग फॉरवर्डेड लिंकेजेस फॉर रिकवरी, these are some examples of temporary sheds, or you can say temporary material recovery facility centers, to which we have uh, implemented in some ULBs. अगर हमें प्रॉपर तरीके से सेग्रीगेशन चाहिए तो हमें ये एमआरएफ सेंटर चालू करना, इट इज द मस्ट नेसेसरी। तो हमने उसके लिए टेम्पररी एक प्लान करके हमने जहाँ पर भी कैपेसिटी बिल्डिंग की थी, तो वहां पर हमने इस प्रकार से शेड या फिर हम कंपार्टमेंट्स कह सकते हैं इसको, कंपार्टमेंट्स करके वो जितने भी ड्राई वेस्ट है वो उसमें हमने सेग्रीगेट करके रखा है। जो यूएलबी जिसकी कैपेसिटी होती है वो मशीनरीज परचेज कर सकते हैं, तो दे कैन इजीली सेग्रीगेट इट एंड convert it into granules by the help with the help of shredders and baling machines. लेकिन जो यूएलबी जिनके पास उतना फंडिंग अवेलेबल नहीं है, तो हम उनको ऐसे प्रोवाइड करके वो हम जो भी ऑथोराइज रिसाइकलर्स है उनके पास से भेजकर ये प्रॉपर तरीके से इसका हम डिस्पोज कर देते हैं। फॉरवर्डेड लिंकेजेस में आप देख सकते हैं कि हम वी कैन यूज इट इन प्लास्टिक, वी कैन यूज प्लास्टिक इन सीमेंट इंडस्ट्री, इन रोड कंस्ट्रक्शन, वी कैन मेक plastic to oil generation, tiles made from recycled plastics, traffic cones and granules. So अभी महाबलेश्वर में आप देख सकते हैं कि जो 4 नंबर का अपना रिसाइकल प्लास्टिक का इशू है, टाइल्स मेड फ्रॉम रिसाइकल प्लास्टिक, दे आर यूजिंग इट वेरी इन वेरी गुड मैनर। वो उनका प्लास्टिक वेस्ट जितना भी कलेक्ट होता है वो उसमें से अपना सिटिंग अरेंजमेंट के लिए जो होते हैं बेंचेस होते हैं, वो बेंचेस उसमें से वो रेडी करते हैं। बिट्टा नगर परिषद है जो भी प्लास्टिक उसमें से वो जनरेट होता है, वो जो कलेक्ट करते हैं उसमें से वो ब्रिक्स तैयार करते हैं, और वो ब्रिक वो दे यूज इन द कंस्ट्रक्शन आल्सो। रोड कंस्ट्रक्शन का एग्जांपल इचलकरंजी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में। जब हम वो कलेक्शन के बाद वो प्लास्टिक प्रोसेसिंग के लिए हम देते हैं, तो बिटुमिनस में वो वी कैन use it with mixing with bituminous and we can use it in road construction. ये थोड़े कॉस्टली अल्टरनेटिव्स है तो यूज ऑफ प्लास्टिक वेस्ट को रिड्यूस करने के लिए, लेकिन वी कैन अचीव इट। बेस्ट प्रैक्टिसेस आप देख सकते हैं कि प्लास्टिक रोड कंस्ट्रक्शन का तमिलनाडु का प्लास्टिक रोड जो उन्होंने 1000 किलोमीटर का किया है, उसके बाद बेंगलोर में भी मोर देन 2000 किलोमीटर ऑफ रोड दे हैव कंस्ट्रक्टेड विद प्लास्टिक वेस्ट। there are lots of examples which can be cost effective also and replicable to other cities or other states also.
अदर टेक्नोलॉजीज अभी एक नया ट्रेंड है अभी है कि रिसाइकल्ड प्लास्टिक से शूज या वॉच हो, ये हम उसमें से एक इनकम सोर्स के लिए प्रोडक्ट हम तैयार करते हैं। तो ये भी एक अच्छा अल्टरनेटिव सोर्स है जिसकी वजह से हम रेवेन्यू भी जनरेट कर सकते हैं और प्लास्टिक वेस्ट को टैकल भी कर सकते हैं अच्छी तरीके से। सो ये एक केस स्टडी है चांगलांग डिस्ट्रिक्ट का। उसमें वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे देवांश यादव सर, उन्होंने एक शेडिंग मशीन का यूनिट सेटअप करके दिया था। उसका कॉस्टिंग भी मैं आगे आपको बताऊंगा। शेडिंग मशीन उन्होंने उसमें उन्होंने जो ट्राइब वहाँ के ट्राइब्स थे, वो ट्राइब्स के साथ उन्होंने ये एक यूनिट चालू करके उसमें से जो भी शेडेड मटेरियल थे, शेडेड ग्रेन्यूल्स थे, वो उन्होंने रोड कंस्ट्रक्शन में यूज करके उन्होंने एक अच्छा एग्जांपल सेट करके दिया कि हम वी कैन इजीली dispose plastic in a very good manner, and they also get shortlisted in top 6 projects for innovation. सो ये शेडिंग मशीन है जिसमें से ग्रैन्यूल्स होके वो तैयार होते हैं। ये अभी हमने ऐसा एक ग्रीन हाउस हमने पनाला करके हमारे यहाँ हिल स्टेशन है, वहां पर हमने वो इम्प्लीमेंट कर दिया है कि जो भी प्लास्टिक है, इको ब्रिक्स जो है, इसके मदद से हमने एक ग्रीन हाउस वहां पर बनाया है। फंडिंग पैटर्न की अगर हम बात करें प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, तो जो जो कि मैंने अभी बोला कि अगस्त में 2023 अगस्त में अभी एक अमेंडमेंट हुआ है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स में, जहाँ पे एपीआर का रोल उन्होंने क्लासिफाई किया है कि जो पोलिटर प्रेस प्रिंसिपल पर वो बेस है। आप जो भी प्रोड्यूसर है वेस्ट का, वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा कि आगे जाके वो उसका प्रॉपर डिस्पोज हो, उसका कलेक्शन हो, ये सब वो देखे। और उसकी वो जिम्मेदारी रहेगी कि वो कैसे जो उसने जनरेट किया है प्लास्टिक, वो उसको कैसे डिस्पोज करेगा। सो इट कुड बी अ ग्रेट इनिशिएटिव। वैसे ही सीएसआर है फंडिंग पैटर्न के लिए। हम प्लास्टिक शेडिंग मशीन और प्लास्टिक बेलिंग मशीन आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट टू मशीनरीज टू convert the plastic waste into reusable manner. So CSR के थ्रू हम वो भी फंडिंग कर सकते हैं। अभी वो पंचायत रेवेन्यू फंड इन द सेंस कि ग्रामीण का होगा तो पंचायत रेवेन्यू फंड, लेकिन अगर हम यूएलबी का शेयर हो या फिर जैसे मैंने बोला है कि सिटी सॉलिडेरिटी एक्शन प्लान हमने तैयार किया है, उसमें जो फाइनेंस होता है 14 फाइनेंस 15 फाइनेंस, तो उसमें भी हम वो यूज कर सकते हैं फंडिंग पैटर्न के लिए। ये कुछ मशीनरीज है जो हमें प्लास्टिक वेस्ट के लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर प्राइस है, अभी हम देख सकते हैं 1,60,000, वो ये इतना कुछ ये कॉस्ट इफेक्टिव है। अगर each will be can easily get 2.60 lakh rupees for solid waste management. So अगर ये हम छोटे छोटे स्टेप भी ले लें यूएलबी लेवल के लिए, तो उसमें से हम प्लास्टिक जो कलेक्शन होता है वो हम इसमें डिस्पोज करके उसका अपने लिए रोड कंस्ट्रक्शन या हो फिर ब्रिक्स करने के लिए हो हम यूज कर सकते हैं। ये श्रेडर मशीन है। ये कुछ कैपेसिटीज है उनकी कि पर केजी पर आवर पर केजी वो कितना काम कर सकता है, और उसके हिसाब से हम जनरेशन जो है वो पर कैपिटा हम जो जनरेशन निकालते हैं उसके हिसाब से हम कैपेसिटी उसकी फुलफिल होती है नहीं वो देख के हम यूएलबीज को प्रोवाइड करते हैं। बेलिंग मशीन का इम्पोर्टेंट जो उसका इम्पोर्टेंस है वो कि वो जब प्लास्टिक वेस्ट जो अपना जनरेट होता है वो कॉम्पैक्ट साइज करके हम वो ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए बेलिंग मशीन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मशीनरी टूल। एंड यहाँ पर उसके भी फंडिंग पैटर्न है।
अभी हम देख सकते हैं यहाँ पर जो राइट साइड पे है वो अगर हम देखें तो प्लास्टिक वेस्ट it take more space if we cannot if we do not bail it or compress it. अगर लेकिन हम बेलिंग मशीन के यूज से हम देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड में वो बेल करने के बाद उसने कितना कम साइज ले लिया है, सो इजीली ये अचीवेबल हो सकता है। We can skip this, it is related to our ULB level, लेकिन अभी हम जो बात कर रहे थे एमआरएफ सेंटर, तो अभी आप देख सकते हैं कि 7 टाइप के यहाँ पे सेग्रीगेटेड 7 टाइप में हम सेग्रीगेट कर सकते हैं वेस्ट, पेट, एचडीपी, पीवीसी, एलडीपी, पीपीपीएस एंड अदर। सो ये अगर हम यूएलपी लेवल में या फिर अपने हाउस होल्ड लेवल से ही सेग्रीगेट कर सकते हैं और कैपेसिटी बिल्डिंग कर दे लोगों की कि आप इसमें से ये सेग्रीगेशन कैसे हम कर सकते हैं अगर उनको बताया तो इट वुड बी इजीली अचीवेबल टू डिस्पोज द वेस्ट। विनय। Yeah, so I think it is a very great presentation as you have described the type of waste and what kind of waste you generated in the urban as well as in in our society. So I think if the attendees if have any question, any particular question on a specific topic, then they can ask in the question and answer session. Our speaker will be happy to help and answer your questions. So please hit your questions in the chat box or there are question and answers section if you can see You on can, your screen. if you are able to see, I have shared the screen that is showing the timeline of the plastic waste management rules in India. So हम किस तरह से प्रोग्रेस कर रहे हैं प्लास्टिक को टैकल करने के लिए। सो 1998 से लेकर अभी 23 तक हमने अभी उसमें एक स्लाइड जो मैंने अभी अमेंडमेंट बताया अगस्त का 23 का वो ऐड करना पड़ेगा। तो वो प्लास्टिक वेस्ट में हम टैकल करते 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 यहाँ तक अभी आ चुके हैं। तो जो मैंने बोला है कि प्रोड्यूसर, लास्ट का पॉइंट इसमें प्रोड्यूसर, ब्रांड ओनर्स, इंपोर्टर्स एंड पीडब्ल्यूडी। अभी स्टेट गवर्नमेंट ने एसपीसीबी ने एक पोर्टल चालू किया है प्लास्टिक वेस्ट के लिए। सो दे हैव टू रजिस्टर देयर एज दे आर प्रोड्यूसर्स एंड ब्रांड ओनर्स। सो वी हैव दैट क्या कहते हैं हम उन हमारे पास उनका डाटा है कि कौन कौन से लोग प्रोड्यूसर्स है और कौन कौन से ब्रांड ओनर्स है। सो एक एक प्रॉपर चेन के थ्रू वो सब जाएगा और वो पोर्टल में होने के लिए तो हमें वो जो फॉरवर्डेड लिंकेजेस करना पड़ेगा प्लास्टिक वेस्ट को टैकल करने के लिए, वो वी कैन इजीली गेट इन टच विद देम एंड जो उन्होंने हम जो बोले थे पोर्टर प्रेस प्रिंसिपल, हम वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे और उनको कंसेंट भी लेना पड़ेगा उसका। ये कुछ साइलेंट फीचर्स है जो मैंने अभी प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल बताया था उसके साइलेंट में फीचर्स है। तो बेसिकली प्लास्टिक वेस्ट जो जनरेट होता है वो इसमें 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो कैपेसिटी बिल्डिंग और बिहेवियरल चेंज। अगर ये दोनों हम प्रॉपर तरीके से नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते तो प्लस देयर इज नो एनी अदर सोर्स टू टैकल द जनरेशन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट। अगर हम लोग देखते हैं अगर हम ही अवेयर नहीं है या फिर हम लोगों को अवेयर नहीं करते, जब तक आप नहीं बताओगे कि प्लास्टिक का यूज करने के बाद क्या होता है या फिर जो आप प्लास्टिक कलेक्ट करते हो, हमने बैच करके थोड़े सिटीजन्स को या फिर जो रिप्रेजेंटेटिव है वो वार्ड के, हमने उनको कंपोस्ट डिपो पर विजिट करा किया था और उनको बताया था कि यू कैन सी यू यू हैव जनरेटेड दैट मच ऑफ वेस्ट एंड वी आर डीलिंग विद दैट मच ऑफ वेस्ट एंड उसका सैनिटेशन वर्कर्स के हेल्थ पर भी जो इश्यू होता है, अफेक्ट होता है, वो भी हमने उनको अच्छी तरह से बताया। सो
it is not the process which have we have achieved in just one day, 1 month. मैं अभी 4 साल से इसमें काम कर रहा हूँ, तो 4 साल में मैं कह सकता हूँ कि अभी थोड़ा बहुत उसमें इम्प्रूवमेंट है, कि लोगों में वो अवेयरनेस है कि हम प्लास्टिक यूज ना करें. सो इट विल टेक मच टाइम. वी हैव टू बी पेशेंट. Yes, definitely. It is a very good point that you have raised about it. Behavioral changes is very much important in the this battle of planet versus plastic. And I would like to share one concept where I heard somewhere like plastic tax, which is imposed on the use of plastic, and it is imposed on the use of single-use plastics, especially, and all the users have to pay the plastic tax. So I would like to ask Prasad if is there any mechanism you have aware that this kind of tax in India or any other mechanism which is the user can means the user have to pay for the plastic use, because most probably we see the plastic waste is coming through the user end. After the use they have not segregated, and they have not make a segregation and give it to the proper recycle. This is the problem where we see the start of the problem. They throw the plastic after use anywhere, so that the problem starts from the user. So how we can impose such kind of mechanism, as I have mentioned, plastic tax or other mechanism which can be monetizing or the behavior. How we can do such kind of thing. Now, we do not have such kind of taxes, but we can tell them when we pay taxes, our regular ULB taxes, उस टैक्स के जो अपना रिसिप्ट होता है, उस रिसिप्ट में यूजर चार्जेस एक देयर इज वन कंपोनेंट यूजर चार्जेस एंड सॉलिड वेस्ट यूजर चार्जेस. सो हम उनको बता सकते हैं कि यू आर पेइंग अस to collect your waste in a proper way and we are disposing or not. You can आपकी वो जिम्मेदारी है कि आप हमें वो क्वेश्चन करें. हमने ये भी उनको अवेयर किया. हमने सिर्फ इतना नहीं बताया कि आप सेग्रीगेट करके दो, हमने बताया कि आप जो सेग्रीगेट करके हमें वेस्ट दे रहे हो उसका हम आगे जाके क्या कर रहे हैं. ये भी आपका राइट है कि हम आप हमें पूछ सकते हैं, क्योंकि यू आर पेइंग फॉर दैट. सो वो जो आप क्या बोलते हैं, मैं वही बोल रहा हूँ कि बिहेवियरल चेंज उनको आप वो प्रूव करना चाहिए कि आप कैसे ये यूज ना करें, या फिर आप यूज करेंगे तो क्या होगा. तो उसके बाद ही ये चेंज आ सकता है. अगर हम उनके उनके ऊपर टैक्स इंपोज करें, जैसे मैंने बताया कि स्टेट स्टेट गवर्नमेंट वी आर imposing fines on producers, and we are also imposing fines on consumers also. They have to pay 500 rupees uh, if they are violating the rule, plastic management rule. But अब अभी आप हम ही देख लेते हैं, अगर हम राह चलते वक्त हम प्लास्टिक हमारे हाथ में है, तो आप अगर मैं आपको फाइन करूंगा तो आप नहीं मुझे 500 रुपए दे दोगे, या फिर 5000 आपका शॉप है तो मैं अगर आपको 5000 रुपए फाइन कर रहा हूँ, तो यू विल नॉट पे दैट मच ऑफ अमाउंट, बिकॉज दैट 5000 इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट टू अस. अगर हाँ, इसीलिए तो कि हम उनके ऊपर इम्पोज जितना करेंगे उतना वो उसको रिफ्यूज करेंगे. So Yes. we that is why I have told earlier that is fine is the last step in any kind of initiative. फाइन जो है वो हम लास्ट में रखते हैं. पहले हम कैपेसिटी बिल्डिंग उनको बताते हैं कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, उसके बाद ही आप वो फाइन की तरफ जा सकते हैं. अगर डायरेक्टली हम फाइन कर दे, या फिर जो आप बोल रहे हो कि टैक्स, प्लास्टिक टैक्स, it is not that much of what we could say, वो इतना नहीं यूजफुल हो सकता. Yes, I completely understand, because this will become a conflict between the public and the government systems and all the officials.
We have one question from Monica that Monica is asking, why is government not banning single-use plastic manufactured units? So, Prasad, would you like to answer that question? Uh, we have also raised the same question to our state officials, but the answer we got from them is plastic is in Maharashtra. There are unauthorized dealers are banned already, but the plastic coming is from Gujarat. The officials told us that it is coming from Gujarat with unauthorized entity, so it is becoming the state conflict, and we are not हम उतना उसमें नहीं जा सकते कि अगर हम उस वहां तक जाकर हमें वो चेक करना होगा या फिर कुछ करना होगा. सो हमने देखा है कि हमें भी पता है कि ये सिंगल यूज प्लास्टिक बैन है, लेकिन उसका जब तक प्रोडक्शन नहीं बंद होगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते. इसलिए अभी हमने जो अमेंडमेंट कर दिए उसमें अमेंडमेंट के हिसाब से अभी 120 माइक्रोन के ऊपर का ही हम प्लास्टिक यूज कर सकते हैं. तो जितना थिकनेस होगा प्लास्टिक का उतना ज्यादा वो रिसाइकल करने के लिए इजीली रिसाइकलेबल है. So government is now stepping forward step by step कि हम थिकनेस उसकी बढ़ा देते हैं. तो हम ऐसे जब तक अल्टरनेटिव्स आपको नहीं मिलेंगे प्लास्टिक के लिए तब तक आप पूरी तरह से प्लास्टिक बैन नहीं हो सकता. Exactly. So that's the point I want to add in the answer of Monica's question. The first thing, plastic is not just a problem of Maharashtra only. It is a problem of our country as well as our planet. If we think globally, single-use plastic manufacture को बंद करना है, so it is not just having a making a law in any state or any particular industrial area. It has to be come from the center or the apex level from the authorities, and it should be implemented through all of the areas of the jurisdiction. So the first thing, it should come from the center to the state level. And the second thing, as Prasad mentioned, the correct point, which is alternative should be there, and then only we can ban the plastic. Because if there is no alternative and we simply ban the plastic, then how we can answer the questions of public what they should use or what they should carry? Yes, there are alternatives available like a cloth bags and paper bags, but the use of paper bag and cloth bags should be we should spread awareness about their use, and how we have to ensure how we can make this feasible to everyone to use all their paper bags and plastic paper bags and cloth bags. There is it is possible. I am not saying like it is not possible, but it is possible when we all of the user decides that I'm not using single-use plastic, or if I'm saying refusing plastic use while going market and while going anywhere or as a packaging material, industry will decide that we are not using single-use plastic for the packaging or anywhere in our process. Then it is very forward step we can say to take and in this battle of planet versus plastic. I think there are shipping companies like Flipkart and Amazon have taken some steps for the packaging. They have changed the material, the packaging, what they have used before, and now what they are using. They have a significant change in their policies as well as the we can see the packages what we receive now. Those are made from the paper or a recyclable material, recyclable plastic. So I those would are like to add that I would like to add that also the mobile companies you can take example of Motorola etc. They are also using reusable material to package their mobiles and other equipments, accessories. Sorry. Vinay? hi. So sorry. So yeah, I think if any other questions are there, we can ask in this question and answer tab or the chat box.
I think our time, we have reached at our time. So I would like to thank you, Mr. Prasad Bhosle, for the wonderful presentation, and his great experience, what he has shared with us, the type of plastics and how the challenges and opportunities are there, the machineries they have used in recycling, and the systems which is imposed, and are the all systems are there to tackle the problem of single-use plastic. With this end note, I would like to appeal all of our attendees and to all the public that it starts from us. If we decide to change our behavior, we can, and it is possible. If we say no to no to single-use plastic, it is definitely possible to tackle that plastic issue from all over the planet. So with this end note, I would like to thank you all of attendees for your valuable time, and our eminent speakers, Mr. Prasad Bhosle, thank you very much for your time and your shared experience in this webinar. So I would like to end this webinar now. So thank you everyone. Thank you so much. Thank you so much.